الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ سرکار اعلیٰ حضرت کنز ایمان کا کر دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا بلکہ صرف صاحب ایمان کو دیا۔ آپ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے تو ایمان والے کے لیے ہے، اور سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے تو ایمان والوں کے لیے۔ اگر ایمان والے سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اگر ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگیں گے، اگر ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین پہ عمل کرنے لگیں گے، اگر صاحب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی بندگی کرنے لگیں گے، اگر ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے لگیں گے، سچوں کے ساتھ ہونے لگیں گے، تو انہیں دنیا میں بہت ہی بہترین اس کا صلہ ملے گا۔ دنیا میں انہیں دنیا کی تمام طاقتیں عطا کر دی جائیں گی، اور کل میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے صدقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی شان کریمی رحیمی کے صدقے جنت الفردوس عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سرکار سیدنا نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دو بزرگان دین کے نام سے آج اس محفل کو منسوب کیا گیا۔ ان دو بزرگان دین کے فیض و برکات حاصل، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم جب بھی محفل کرتے ہیں سرکار آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ابھی تک، حضرت آدم سے لے کر ابھی تک دنیا میں جتنے بھی رسول پیغمبر نبی ولی آئے، ہم سب کا صدقہ لینے کے لیے محفلوں کا آغاز کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن کچھ محفلیں خاص منسوب کی جاتی ہیں۔ 11ویں شریف میں سرکار وضع پاک کی محفل کو منسوب کیا جاتا ہے۔ 12ویں شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے محفل کو منعقد کیا جاتا ہے۔ ہر مہینے کی ہر وقت کی اپنی اپنی محفلیں منسوب ہیں۔ تو آج یہ جو محفل منسوب کی گئی ہے، سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سرکار نور میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک ایک انسان جانتا ہے۔ تو پہلے بھی بتایا گیا کہ سرکار سیدنا غریب نواز اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان میں تبلیغ کرنے کے لیے آئے۔ سرکار سیدنا غریب نواز اپنا نام کروانے کے لیے ہندوستان میں نہیں آئے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہندوستان میں تشریف لائے۔ کون سرکار سیدنا غریب نواز؟ جن کو ہم آپ علی کے نام سے جانتے ہیں۔ کون سرکار سیدنا غریب نواز؟ جن کو ہم آپ سیدنا سرکار امام حسن کی اولاد کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار سیدنا غریب نواز حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ سرکار سیدنا غریب نواز حضرت امام حسن کی آن سے بھی ہے، حضرت امام حسین کی آن سے بھی ہے۔ سرکار سیدنا غریب نواز امام زین العابدین کے پسر ہے۔ سرکار سیدنا غریب نواز سرکار امام جعفر کے پسر ہے۔ سرکار سیدنا غریب نواز امام باقر کے جانشین ہیں۔ ہمارے اور آپ کی قسمت کی تھکی ہے، ہم اور آپ قسمت کے بڑے ہی مقدر والے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایسا ولی ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، اس ملک کا سلطان کسی ایسے رہتے میں نہیں، بلکہ اپنے محبوب کی آل کے اندر اس ملک کا سلطان پیدا فرمایا۔ سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا لقب ہے۔ غریب نواز آپ کا لقب ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ظاہری زندگی میں تھے تو آپ کے در پہ جو بھی آتا تھا اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے تھے۔ جو بھی غریب آتا تھا اسے اتنا عطا کیا کرتے تھے، اتنا عطا کیا کرتے تھے کہ وہ غریب نہیں بلکہ غریب اس سے خیرات مانگا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والا کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام تو معین الدین حسن، معین الدین حسن ہے۔ آپ کا نام معین الدین، یہ معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا چراغ، دین کی روشنی، دین کو روشنی بخشنے والا معین الدین۔ جب سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بارہا سنا، سرکار سیدنا غریب نواز ہندوستان کے اندر آئے تو آپ کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا۔ سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہندوستان کے اندر آئے تو آپ کے اوپر دشمنوں کو چھوڑ دیا گیا۔ سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہندوستان کے اندر آئے تو نہ جانے کس کس طریقے کی تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنے پڑا۔ سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ
ताला ने जब हिंदुस्तान में आए, खाने पीने के लिए परेशान कर दिया गया, आपको रहने की जगह मैसर नहीं, लेकिन सरकार सैयदना गरीब नवाज घबराए नहीं, सरकार सैयदना गरीब नवाज शिकस्त नहीं खाई। आगे वजह क्या थी? सरकार सैयदना गरीब नवाज अकेले थे, जन्नत आपके वफा आपके साथ में थे। बादशाही दौर उस वक्त पावरफुल था, उस वक्त में उसके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत थी, उस वक्त वो हिंदुस्तान का बादशाह था। आके वो एक बादशाह, तो पूरी हुकूमत का बादशाह सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को पस्त क्यों नहीं कर पा रहा था? वो आपको झुका क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने नाम का परचम नहीं, बल्कि रसूल पाक का परचम बुलंद करने के लिए आए थे। अपने बाप का नाम लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपने नाना के दीन को बुलंद करने के लिए आए थे। सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ऊपर जब पृथ्वीराज चौहान ने जादूगरों को भेजा, उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर को भेजा, जादूगर ने सांप फेंके तो रस्सी बन गई, पत्थर को फेंका तो पत्थर हवा में लटक गया। अब बादशाह पूछता है, तू इतना बड़ा जादूगर है, आखिर ये तेरे सामने जादू इसका चलता क्यों नहीं? तो एक बात यहाँ होकर मैं कहना चाहूंगा, जब कोई रब तबारक का खास हो जाता है ना, तो दुश्मन भी उसकी तारीफ करने के लिए माहिर हो जाता है, दुश्मन भी उसकी तारीफ करने से रह नहीं पाता है। वो जादूगर कहता है बादशाह से, बादशाह तू दुनिया के मुझसे भी बड़े जादूगर को बुलवा ले, लेकिन वो इनको झुका नहीं सकते। सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को वो झुका नहीं सकते। बादशाह हैरत में पड़ गया, बादशाह सोचने लगा कि आखिर तुम इतने बड़े जादूगर हो और तुम कहते हो कि दुनिया के कितने भी बड़े जादूगर को बुलवा ले, दुनिया की कितनी बड़ी ताकत को बुलवा ले, वो कोई जादूगर इनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। आखिर वजह क्या है? वो जादूगर कहता है कि ये गरीब नवाज, ये बाबा जान, ये बाबा जो हिंदुस्तान में आया है, ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, हमारे जादू का असर इस पे नहीं हो सकता। बादशाह पूछने लगा क्यों नहीं हो सकता? तो बादशाह कहता है, उस वक्त में बादशाह कहता है जादू का असर इसलिए इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इस मर्दे कलंदर की आंखों में इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है, इतनी अल्लाह ताला की तजल्ली मौजूद है। मैं इस पे जादू करता हूँ, इसकी आंखों की चमक में जादू को काट देती है, इसकी आंखों की चमक में जादू को बर्बाद कर देती है। आखिर इसकी आंखों में इतनी रोशनी आई कहां से? आखिर सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आंखों में इतनी चमक आई कहां से? तो वो जादूगर ही कहता है मैं इसको हरा सकता हूँ, बस मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं इसको पस्त कर सकता हूँ, बस मुझे एक काम करना पड़ेगा। मेरा जादू इस पे नहीं चल रहा है, उसकी सिर्फ यही वजह है कि इस बाबे ने कभी अपनी जिंदगी में किसी गैर महरम को अपनी आंखों से देखा नहीं, किसी गैर महरम को अपनी आंखों से नहीं देखा। तो अब तबारक व तआला ने गैर महरम को ना देखने की वजह से इसकी आंखों में ऐसी तजल्लियां पैदा की, ऐसी शान पैदा की कि हमारे जादू इससे असर नहीं करते। अगर तू इसको किसी हसीना के ऊपर इसको डमाडोल कर दे, अगर किसी हसीना के हुस्न में इसको मशहूर कर दे, तो मैं इसको अपने जादू से पस्त कर सकता हूँ। तो बादशाह कहने लगा, बादशाह सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को अपना जैसा समझ बैठा था, अपने जैसा समझ बैठा था। कहने लगा औरत एक आग है, इंसान एक मर्द एक मोम है, अगर मोम को आग के करीब ले जाया जाएगा तो मोम पिघलेगा नहीं पिघलेगा, अगर पिघलेगा नहीं तो नरम तो पड़ ही जाएगा। तो बादशाह उस वक्त में तमाम हसीनाओं को इकट्ठा करता है, तमाम हसीनाओं को जमा करता है। वो कहता है फला जगह पे पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा है, तुम जाओ उसे अपने हुस्न के जलवे उसके सामने जाहिर हो, तुम जाओ उसके अपने हुस्न के पर्दे उसके सामने हटा दो। वो तमाम हसीनाएं सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सामने आ जाती है। सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक पेड़ के नीचे आंखों को बंद किए हुए बैठे हैं और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। वो हसीनाएं सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सामने आती है, अपनी पायल को छटकाती रहती है, अपनी जेबरी को छटकाती रहती है, अपनी पाजेब को खड़काती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है, खड़काते खड़काते थक जाती है। आके सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आंखें उठा के उनके हुस्न की तरफ देखते हैं। सरकार सैयदना गरीब नवाज को कोई मकाम ऐसे ही नहीं मिल गया, कोई बुलंदी ऐसे ही नहीं मिल गई, कोई तख्त ताज में ऐसे ही नहीं मिल गया, बल्कि रब तबारक व तआला की जात से उनका ताल्लुक ऐसा था, जब सजदे में जाते थे तो तभी उठते थे जब रब तबारक व तआला की दीदार कर दिया करते। ऐसे रब तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल शख्स थे, ऐसे पाए के बुजुर्ग थे, हमारे दिलों की जान सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब दुआएं करने के लिए हाथ उठाते थे, जब दुआएं
सामने दुआएं कबूल हो जाया करती थी। सुभान ऐसे ही उनको अल्लाह। विलायत नहीं मिल गई, बात आगे निकल गई। बादशाह ने हसीनाओं को भेजा, आग को उनको हुस्न में मुब्तला करने के लिए हसीनाओं से कह दिया इनको अपने हुस्न में मुब्तला करो। हसीनाएं सुबह से लेकर शाम तक अपनी पाजेब को खड़काती रही। सरकार सैयदना गनी नवाज रहमतुल्लाह ताला ने अपनी आंखों को नहीं बोला। हसीनाएं मायूस होकर बादशाह के दरबार में लौट गई। हसीनाएं परेशान होकर बादशाह के दरबार में लौट गई। बादशाह से कहती है, बादशाह सलावत, हमारा हुस्न उसके ऊपर कोई असर न कर सका, हमारा हुस्न उसके ऊपर कोई काम ना आ सका, हमारा हुस्न उसके ऊपर कुछ भी न कर सका। बादशाह ने उन हसीनाओं से कहा, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम चले जाओ। अब इस काम को जो करेगी मेरी बेटी करेगी, वो बेटी जिसने अपने हुस्न से न जाने कितने बादशाहों के तख्त को पलट दिया, वो बेटी जिसने अपने हुस्न से, बादशाह की बेटी के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी हसीन थी, इतनी हसीन थी कि जब वो अपने महल से निकलकर उसके पास में जाया करती थी, अना सागर के पास में गुस्ल करने के लिए, तो न जाने कितने आशिक अपना दिल उसमें हार करते, न जाने कितने लोग उसमें अपना दिल दे बैठे थे। तो इतनी हसीन थी जिसने अपने हुस्न की वजह से न जाने कितने बादशाहों के तख्त पलट दिए। तो बादशाह कहता है, हम इस्लाम को कहेगी तो मेरी बेटी करेगी। वो बादशाह की बेटी, बादशाह अपनी बेटी से कहता है, ऐ मेरी रहते जिगर, आज मुझे मेरा एक काम करना है। बादशाह की बेटी कहती है, मुझे बताइए। वो कहता है कि एक बाबा आया है, फला देव मुल्क से एक बाबा आया है जिसने यहाँ पे दीन इस्लाम की तबलीग को करना शुरू कर दिया है। लोग बहुत तेजी के साथ उसके तरफ माइल होने लगे हैं, लोग बहुत तेजी के साथ उसका दीन कबूल करने लगे हैं। अगर इस तरीके से चला गया, अगर इस तरीके से मामला पेश आएगा तो हमारी हुकूमत चंद दिनों की है, हमारी हुकूमत चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। बादशाह की बेटी तैयार होती है, अपने हुस्न को संवारती है और सरकार सैयदना गनी नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने जाके खड़ी हो जाती है और वो भी वही काम करती है, अपने पाए की पाजेब को खड़काने लगती है। सरकार सैयदना गनी नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने अपने पैर की पाजेब को खड़काने लगती है। सरकार सैयदना गनी नवाज अपनी वही हालत में पेड़ के नीचे बैठकर आंखों को बंद किए हुए बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि सरकार सैयदना गनी नवाज अक्सर बेशतर आंखों को बंद करके बैठे रहते थे। सरकार सैयदना गनी नवाज बिला फुजूल आंखें नहीं खोलते थे, अक्सर जब बैठे होते थे तो आंखों बंद करके बैठते थे। सरकार सैयदना गनी नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने वो लड़की आती है, अपनी पायल को खड़काती है, वो भी खड़काते खड़काते परेशान हो जाती है, उसके गट्टे जवाब दे जाते हैं, खड़काते खड़काते परेशान हो जाती है। वो परेशान होने के बाद बेसाख्ता कहती है, ऐ माइनुद्दीन, मेरे हुस्न की तौहीन तो न कर, कम से कम एक नजर उठा के मुझे देख तो ले, कम से कम अभी तक पैर खड़का रही थी, ज़बान से नहीं कहा था, लेकिन जब परेशान हो गई तो कहती है, मेरे हुस्न की तौहीन तो न कर, मेरे हुस्न की बेइज्जती तो न कर, मुझ पर न जाने कितने लोग आशिक होते हैं और तू है कि मेरी तरफ नजर उठा के देखता भी नहीं। फिर सरकार सैयदना गनी नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से उसने इतना कहा, ऐ मोइनुद्दीन, मेरे हुस्न की तौहीन तो न कर, कम से कम एक नजर उठा के देख तो ले। तो सरकार सैयदना गनी नवाज ने जब इस जुमले को सुना तो जुमले को सुनते ही अपने नाना जान की सुन्नत पे अमल किया। क्या अमल किया? उन लोगों को पता था कि बेटी इस्लाम की हो, बेटी किसी धर्म की हो, आगे पर्दा पर्दा होता है। जब सरकार अलैहिस्सलाम व तस्लीम की बारगाह में फातिमा ताई की बेटी को लाया गया था तो सरकार ने अपनी चादर दे के कहा था, उसको हमारी बारगाह में तभी लेके आया जाए जब हमारी चादर में इसको लपेट दिया जाए। बेटी किसी की भी सही, उसका पर्दा लाज़िम है। तो सरकार सैयदना गनी नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने नाना जान की सुन्नत पे अमल किया। जब उस लड़की ने कहा कि कम से कम मेरे हुस्न को देख तो ले, मेरे हुस्न की तौहीन तो न कर, तो सरकार सैयदना गनी नवाज अपनी चादर को उठाते हैं, उसके सामने फेंक देते हैं, कहते हैं, अगर तुझे मेरे सामने आना है तो बेटी इस चादर को ओढ़ ले, उसके बाद मेरे सामने आ, बेटी इस चादर को ओढ़ ले, उसके बाद मेरे सामने आ। लेकिन सरकार सैयदना गनी नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी आंखों को नहीं खोला, क्योंकि वो अपने वली थे। उन्होंने कभी जिंदगी में उनको जो मकाम मिला था इसी वजह से मिला था। जादूगर का जादू असर नहीं किया, आपकी आंखों की तजल्ली थी। तजल्ली क्या थी? कि उन्होंने किसी गैर धर्म को नहीं देखा, तो आज कैसे किसी गैर धर्म को देख लेते? बल्कि मीर अब्दुल वाहिद अलगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब शब शरानी शरीफ में लिखते हैं कि सरकार सैयदना गनी नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर बेशतर आंखों को बंद करके रहते थे।